Okay, good evening class. Now we are moving to unit 2, that is introduction to operating system. So let's just get started. What is an operating system? Now you people are very well aware that operating system is something known as your system software. We can also call it as system software. All those who are not aware of what system software or application softwares are may refer the previous videos. So operating system is a system software that is responsible for the complete function of your machine, or you can say that it is an interface between a computer user and a computer hardware. So it is an interface between the hardware and the user. Then it is a software which is performing all the basic tasks from opening a file, closing a file, managing it, file management, memory management, process management, handling the input and output, and controlling the peripheral devices. Now you people are also aware of what peripheral devices are. Peripheral devices is anything that is connected to your main CPU or your computer thing. For example, disk drivers, printers, etc. etc. So ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक इंटरफेस है. इट इज़ एन इंटरफेस आप यूजर्स के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, एंड इट इज़ होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डू द बेसिक टास्क्स ऑफ द कंप्यूटर. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम? सो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. उसके अंदर कुछ यूज़र हैं जैसे कि आप, मैं. देन देर आर सर्टन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो कि यूज़र्स को अलाउ करते हैं. दीज आर द सॉफ्टवेयर्स विच यूज़र्स यूज़ डायरेक्टली to perform different activities. For example, some people are browsing, some people are using Word, some are using Excel, some are using some editors, some are playing games, etc. etc. So all these are application softwares. Again, it is a part of the computer. Then the third thing for the composition of the entire computer system is सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं इन नेचर में. दे आर क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट एज कम्पेयर टू द बेसिक थिंग्स, एंड दे आर मोर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर से थोड़े क्लोज होते हैं. यूजुअली दे आर रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल असेंबली लैंग्वेज, एंड इट इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक Windows, Mac OS, Linux, etc. Then another thing when we are talking of the computer system is computer hardware. Computer hardware is again your periphery. It is again your periphery like your monitors, keyboard, CPU, disks, memory, etc. etc. So this entire is the composition of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला हुआ है तो आपका सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा. इट वुड बी ऑफ नो यूज टू यू एंड इट वुड बी ऑफ नो यूज टू मी एज वेल, राइट? देन देर आर सर्टन एग्जाम्पल्स. ना फर्स्ट थिंग यू पीपल शुड बी नोइंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम पैसा देकर खरीद कर भी ले सकते हैं या फिर दे कुड बी अनपेड लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको MS ऑफिस यूज़ करना है कुछ हद तक इट इज़ फ्री. आफ्टर दैट इट इज़ एवरीबडी इज़ अवेयर दैट इट इज़ अ लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर. इट हैज़ टू बी बॉट फ्रॉम MS. माइक्रोसॉफ्ट से आपको उसको खरीदना पड़ेगा. सो इट इज़ अ पेड application software which is there. But when I am talking of the open source का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूँगी लाइबर ऑफिस, जहाँ पर सेम काम आप जो वर्ड में करते हैं वो यहाँ पर आप कहाँ पे करते हैं? राइटर में. सेम काम जो आप एक्सेल में करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में वो आप लाइबर में कहाँ कर लेते हैं? आप करते हैं उसको कैल्क में. सेम काम जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करते हैं वो आप सेम काम यहाँ पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इम्प्रेस. अगैन दिस इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल टू यू. तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी है या अनपेड कुछ भी है उसको हम बोलते हैं open source software. Otherwise it is a paid source software or a licensed software, for example your Microsoft, right? Then here are
a few examples of the operating systems like Windows, then you have Linux, Mac OS, iOS and Android, right? So what is an operating system? What do you mean by a computer system? और basic जो functionalities functions हैं कंप्यूटर के input output वो हम पिछले सेशन में हम already cover कर चुके हैं. Then there are certain functions of operating system. For example, it is managing the processes, it is managing your input output devices, it is managing your files, it is managing your networks, it is managing main memory, it is managing the secondary storage, security, command interpreter, control over the performance, job accounting, error detection and correction and coordination between the software and users. ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं. अब फंक्शंस में जब मैं बता रही हूँ तो here only let me just tell you one thing. मैं इस पेज पे आपको बता देती हूँ. When I am saying that I am doing certain job accounting, तो एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी स्टोरी है, उसको आप यहाँ पे देख लेंगे. When I am talking of the operating system अपने सारे काम, वो काम कुछ भी हो सकता है. Any instructions are there. वो कोई भी instructions होते हैं like opening, closing a file, editing a file, maintaining a file, locking a file, etc. जो भी आपके instructions हैं उन सबको processes में कन्वर्ट करता है. मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन प्रोसेसेस लाइक P1, P2, P3, P4, P5 ब्ला ब्ला ब्ला. अब हर एक प्रोसेस का कुछ अराइवल टाइम होता है और कुछ बर्स्ट टाइम होता है. अराइवल टाइम से आई मीन लाइक प्रोसेस 1 मेरे CPU को कब मिला, लेट्स से कि ये मेरे 0 माइक्रोसेकेंड में आ गया, ये मेरे 2 माइक्रोसेकेंड्स में आ गया, ये लेट्स से 3 माइक्रोसेकेंड्स में आ जाता है, लेट्स से ये भी 3 में ही आ गया, लेट्स से ये 5 माइक्रोसेकेंड्स में आ गया. बर्स्ट टाइम ये कितनी देर काम किया, लेट्स से ये 5 यूनिट्स काम करा, ये 3 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स, ये 6 यूनिट्स, ये 4 यूनिट्स. अब इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट डू वी हैव, व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम इज डूइंग. प्रोसेसेस ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वो इसके लिए एक गैंट चार्ट बनाता है. इट प्रिपेयर्स अ चार्ट कि हर एक प्रोसेस को कैसे करना है. अब गैंट चार्ट बनाने के लिए यहाँ पर देर आर सर्टन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. व्हाट आर दीज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फॉर एग्जाम्पल राउंड रॉबिन, फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटी. ये सब कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं. नाउ दिस इज़ अ डिटेल्ड वर्जन, ये आपके सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, बट यू शुड बी नोइंग अ बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हेन आई लेट्स जस्ट टेक फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट FCFS. फॉर एग्जाम्पल ये काम परफॉर्म करने के लिए मेरा CPU जो है इट इज़ यूजिंग FCFS. हाउ इट इज़ गोइंग टू डू, किस तरीके से करेगा, वो देखता है कि 0 नैनोसेकेंड्स माइक्रोसेकेंड्स में मेरा P1 आ जाता है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो पहले हमने P1 को सर्व किया, ये कितनी देर काम कर रहा है, 5 यूनिट्स के लिए. सो 0 में आया, 5 यूनिट्स के लिए काम किया. देन P2 2 में आ गया है, ये कितनी देर काम किया है, 3 यूनिट्स, 5 + 3 8. फिर P3 आया, कितनी देर, 2 यूनिट्स यानी 10. फिर P4 आया. अभी मैं FCFS की बात कर रही हूँ, किसी और शेड्यूलिंग को लोगे तो उससे डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. हमें वो रिजल्ट सिलेक्ट करना है जिससे आपका प्रोसेसिंग टाइम मिनिमम आए. किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करके अगर आपका CPU मिनिमम ले रहा है तो वही एल्गोरिथम को लेता है, वही शेड्यूलिंग मेथड जो है यूज़ करता है. P4 इज़ देयर फॉर 6 units, so let's just say 10 + 6 is nothing but 16. Then comes P5, जो भी पहले आ रहा है उसको हम सर्व कर रहे हैं. So it is for 4 units, so 16 + 4 is nothing but 20, right? So P1, P2, P3, P4, P5 को complete करने में हमको 20 minutes लग रहे हैं. But again there are certain things like there is something known as turnaround time. Then there is something known as an average waiting time.
कि CPU को कितनी देर तक वेट करना पड़ा, कितनी देर तक उसको टर्न अराउंड करना पड़ा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछते हैं कि काम करने में उसको एवरेज कितना टाइम लगा, एवरेज टाइम जिसको हम लोग कहीं कहीं पढ़ते हैं तो हम इसको थ्रूपुट बोलते हैं, तो ये आपको हर एक प्रोसेस के लिए निकालना पड़ेगा। P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए। P1 के लिए उसने टर्न अराउंड जो करा है 5 माइनस वो अराइव कब हुआ है, लेट मी जस्ट एंड राइट इट प्रॉपरली, 5 माइनस अराइवल टाइम है इसका 0, so 5 minus 0 is 5. When I'm talking of P2 it is completing the task at 8 units minus P2 कब आया है 2 seconds में, 2 microseconds में आया है, so 8 minus 2 is nothing but 6. When I'm talking of P3 so it is 10 minus 3, that is 7. P4 that is 16 minus 3 again, that is 13. P5 20 minus 5, that is 15. So you can calculate the average of these things, that is 5 plus 6 plus 7 plus 13 plus 15 divided by 3 4 5. So what is it? 15 5 20, 26, 27, 33 and 13, that is 46. So this is 46 by 5. 5 9s are 45. 9.12 microseconds is the average throughput done by CPU when I am doing FCFS. FCFS का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है, RR करेंगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा, प्रायोरिटी करेंगे तो उससे बेटर, और SGF करेंगे तो उससे बेटर, और प्रायोरिटी उससे भी बेटर। सो वी ऑलवेज प्रेफर डूइंग प्रायोरिटी जॉब्स। तो ये एक मैं आपको एक टेक्निक, एक मेथड बताना चाह रही थी while executing the instructions. This is the entire scenario which your CPU is doing. आप कुछ भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो easily नहीं हो रहा है. There is certain mathematical thing that is happening at the back. What is it that I have just now discussed? Moving back to the main picture. Where were we? तो अभी मैंने जो आपको काम बोला, आप बोल सकते हो इस तरीके से प्रोसेस मैनेज होते हैं, इस तरीके से जॉब अकाउंट्स होते हैं, इस तरीके से इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग अब हम क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं कि इनपुट प्रोसेस की जगह पर इनपुट आउटपुट कब आया और उस इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगा। कितना टाइम लगा इज़ नथिंग बट योर बर्स्ट टाइम, कब आया इज़ नथिंग बट योर अराइवल टाइम। सो दीज आर सर्टन फंक्शनैलिटीज, सर्टन functions of operating systems that you people should be aware of. Moving to the next topic. ये मैंने एक pictorial form दिया है, you can have a look. We are somewhat over here, we are users. Then in the software we have certain system software and application software, and then we have the hardware, and this is how the complete computer is being comprised of, or the machine or the system is made of. Moving on to the next topic, that is types of operating system. All right, so the first type is batch operating system. मैंने पहले भी बताया है batch operating system में क्या होता है, that we are not interacting with the computer directly, but we are performing our job in the form of offline devices like punched cards, and we are submitting it to the computer operator. होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में भी बताया है कि एक बच्चा है जिसको ईमेल सेंड करना है, एक बच्चा है जिसको टाइपिंग करना है, एक बच्चा है जिसको ब्राउज करना है। तो कुछ बच्चे जिनको ईमेल करना है उसकी कैटेगरी हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं। नो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, कंसिडर इट एज एन एग्जाम्पल। सम पीपल वांट्स टू टाइप, सो दैट इज लेट्स से नो दिस इज क्लास A, दिस इज क्लास B, and those people who want to browse is class C. अपनी क्लास को मैंने A, B, C 3 क्लासेस में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और सिमिलर नीड्स को लाइक जिसको ईमेल करना है उसका मैंने एक बैच बना दिया, बैच A, उसकी नीड्स को वो पहले कंप्लीट करेगा। बैच B बना दिया जिसमें टाइपिंग करना है, उसके नीड्स को करेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम known as batch operating system. So to speed up processing, jobs with similar needs are batched together and they run as a group. The programmers leave their programs with the operator, and the operator then sorts it with the similar
requirements into batch. जैसे कि वो सब बच्चे जिनको मेल करना है is certain similar requirements, we are categorizing it as batch A, typing as batch B, and browsing as batch C. So those batches are executed in order to perform their jobs. इसको pictorial way में देखेंगे, then please have a look. We have job 1, job 2, going on till job n, and we are converting it to a particular batch. Let's say this is batch A, batch B, moving on batch C. Now we are giving these batches to CPU to perform it, to complete the operation. That is something known as batch operating system. That was the first operating system. Second was actually multi-programming. मैंने multi-programming दिया है. So this is the picture of multi-programming. Oh, I have mentioned it here. Multi-programming में क्या होता है? As the name indicates that you can perform multiple jobs at the same time. Job 1, job 2, job 3, blah 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 blah, up till job n you can perform at the same time. Now the third type is time sharing, or you can also call it as multitasking. So it is a technique that is enabling the people who are located at various terminals to use the computer system at the same time. When I am teaching right now, I am using my machine. When you are receiving the same thing, you are using your machine in order to receive it. And we can do so many things at the same time. That is known as time sharing or multitasking. Time sharing or multitasking is actually an extension of multi-programming. First, multi-programming came into the picture and then multitasking, right? So इससे होता क्या है कि जो processors का time है वो share हो जाता है among the users simultaneously. That is why it is a time sharing operating system, right? Then we had this one. फोर्थ कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है ना, जो सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं वो हम एक की जगह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. वी आर यूजिंग मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस एंड मल्टीपल यूजर्स, राइट. फिफ्थ इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में वी आर प्रोवाइडिंग द इंटायर लोड ऑन अ सिंगल सर्वर. We provide, it provides the server the capability to manage the data, users, groups, security, etc., any sort of applications that has to be served by the network itself. So the primary purpose of this type of system is to allow the shared file printer among multiple computers in a network. फॉर एग्जाम्पल लोकल एरिया नेटवर्क. नहीं तो आप एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेरियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जैसे कि हम लोग CCC का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, या हम कोई भी एक रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं. लेट्स से जैसे हम लोग एक नाबार्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, या किसी का भी अगर हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं. सो वी वॉन्ट ऑल ऑफ द पीपल शुड गिव द टाइम exam at the same time. So time sharing is definitely maintained, but at the same time what do I want? I want to control all of this systems with the help of a central server. So I'm using something known as a time sharing, and in combination with the time sharing, I'm using network operating system, right? Then you have a sixth type of operating system, the real-time operating system. It is defined as a data processing system in which the time interval required to process and respond to inputs is too small. बहुत ही कम इसमें टाइम लगता है, that it controls the environment. The time taken by the system to respond to an input and display this is known as the response time. ठीक है. तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है रियल टाइम में वो बहुत ही क्विक, वेरी क्विक होता है. लाइक वी डू रियल टाइम मैसेजिंग, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप, मैसेंजर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो रियल टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ टेकिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, and that is something that is happening in this real-time operating system. So in totality you can say that we have 6 types of operating systems. How many types? 6 types. So in particularly when I am confining your syllabus from your examination point of view, in unit 2 you should be knowing what
ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके जो बेसिक बाइफिकेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए. देन उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, हेयर आर द फंक्शनैलिटीज़ दैट आई हैव मेंशन and I have also told you the functionalities in detail. Then apart from that, you should be knowing that there are 6 types of operating system: batch, multi-programming, multitasking, distributed, network, and real-time operating system. Then that is all for your operating system unit, for your second unit. But there is a small, a topic दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ये भी एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए. स्पूलिंग, इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन. अगर आपको साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस करवाने हैं, फॉर एग्जाम्पल पेरिफेरल ऑपरेशंस मतलब मैं एक ऑफिस में बैठी हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरा एक कोलीग, लेट्स से आई एम ए, this is person B, this is person C, and we are using the single printer. For example, मैंने A कमांड दे रहा है प्रिंटर को कि वो कुछ प्रिंट कर दे. एट द सेम टाइम B भी कमांड दे रहा है कि आप प्रिंट कर दो. एट द सेम टाइम C भी कमांड दे रहा है कि आप प्रिंट कर दो. तो साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस हो जाएंगे ओनली ऑन द कंडीशन इफ़ योर मशीन इज़ ऑनलाइन और इफ़ all of the terminals like terminal A, B, C are online. If any one of these things are not online, the operation would not be performed. Moreover, इससे क्या होता है, इसके आपके जो भी इनपुट आउटपुट जॉब्स होते हैं उसको हम बफर में डाल देते हैं. ठीक है, we keep it in the buffer, and this buffer is a special area which is actually accessing your input output devices. कभी आपने ये भी देखा होगा that आपने प्रिंट का कमांड दिया, फॉर सम रीज़न पेपर फंस गया, ये आपने सेटिंग ठीक नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर कुड बी सेवरल रीजंस जिसके वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है और आप प्रिंट नहीं कर पा रहे. नाउ प्रिंटिंग इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग ओवर हियर, दैट आई एम मेंशनिंग हियर. तो जो भी रीज़न है जिस वजह से आप प्रिंट नहीं कर पाए या जो भी एक्टिविटी करना चाहिए था नहीं कर पाए, वो आपका एक पूल में इनपुट आउटपुट बफर में थोड़ी देर के लिए रह जाता है और उससे वो बाद में एक्सेस कर लेता है. इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन. नाउ हियर पेरिफेरल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली दे आर हैपनिंग एंड इट इज़ बीइंग डन ऑनलाइन. ये पूरा आपको क्लियर होना चाहिए. एक मैंने पिक्चर में आपको एग्जाम्पल में दिया है. If I want my memory to read a card, if I want my memory to store something in a disk, if I want my memory to print it, all of these things would be done simultaneously when it is online. So that is something known as online. Means it should be connected, it should be there on the network. When it is there on the network, the the action is being performed, and that is nothing but spooling. So I hope I am clear to each one of you. So with this we can say that we have the basic knowledge in operating system, and that is all in your syllabus about operating system. मैं टॉपिक आपको इस तरीके से समझा रही हूँ so that you can refer it repeatedly in case अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है in at any point यूजिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो, वहीं पर ही आप कमेंट दे दीजिए. हम एक डिस्कशन सेशन कर लेंगे जिसमें आपके सारे इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बिफोर योर एग्जामिनेशन. नाउ एवरीवन इज़ अवेयर दैट जनवरी में काफ़ी ओ लेवल के बच्चों का एग्ज़ाम है, सो दैट ऑल्सो वी कैन टेक इट अप, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. नाउ नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी प्रिपेयरिंग वुड बी अ डिस्कशन सेशन ऑन यूनिट 1 एंड यूनिट 2. अब हमारे 2 यूनिट्स हो गए, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे. माइंड इट प्लीज़ माइंड इट. वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन MCQs. सारे के सारे पेपर हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप हैं. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन descriptive part. We have to focus more on MCQs. So that is all for today. Thank you. Bye bye. Take care.